Assalamu alaikum. My name is Muhammad Zahid Nasir. First of all, I want to introduce myself. My name is Engineer Muhammad Zahid Nasir, graduated from Quest Nawabshah. After graduation, I served my services at different industries. After getting industrial experience, I joined Technical Training College, Reherki Road, Reherki, and this college is supported by agro fertilizers and other industries located in Ghotki district. So I joined my duties at Technical Training College in 2017 as an instructor to serve my services to educate DAE electrical students. So I continued my duties there about 5 years from tenure 2017 to 2022. Due to my interest in teaching profession, I want to help electrical students which are getting education in different technical colleges. I hope my lectures will remain helpful for DE electrical students. So as you all know that in my lectures I will cover all 3 years syllabus of DE electrical, and in my lectures I will cover main subjects of DE electrical like DC fundamentals, DC machines and AC machines. DC fundamentals associated subject for first year students, and DC machine is associated for second year students of DE electrical, and AC fundamentals are AC machines which DE electrical students studied in third year. So all these 3 subjects are main top subjects of DE electrical. So in this lecture I am going to start DC fundamentals. In ET 125, which is the code of first year DC fundamental subject, principles of electrical engineering subject. So in this subject, first of all we start DC fundamentals, and in DC fundamentals here is chapter 1, which is regarding basic concepts of electricity. So now we are going to start chapter number 1, which is basic concepts of electricity. In this chapter we will cover up these different subtopics. First one is electron theory, electrical charge, electric current, potential difference, resistance, conductance, conductor, insulator, semiconductors. So all these subtopics from 1.1 to 1.12 will be covered in this chapter number 1. So now today we start first subtopic of chapter number 1, which is electron theory. Electron theory basically regarding the basic concept of matter, because we all know that electron, basic particles of atoms, electron, proton and neutrons, all these are associated with the matter. So the electron theory of electricity states that all matter is composed of atoms, and electricity is simply the flow of free electrons between these atoms. So इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है,
और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है एसोसिएटेड विद ऑल मैटर्स, हम जानते हैं कि मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम टर्म को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज एटम्स, बिकॉज ऑल वी नो डैट मैटर इज़ composed of smallest particle which is called as atom. So first of all we see the structure of matter. The smallest part of matter is called atom, and when atoms combine together they form a molecule. तो एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, जिसको मैटर बोलते हैं। सो व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम के अंदर जो स्मॉलेस्ट छोटे में छोटा जो पार्ट है मैटर का वो एटम कहलाता है, और जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन गैस H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं, जिसमें कार्बन और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। तो फर्दर हम अगर हम एलोबरेट करें एटम को, तो एटम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ सेंट्रल पार्ट कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर एक सेंट्रल हिस्सा होता है और एक आउटर पार्ट होता है, एक सेंट्रल पार्ट दूसरा आउटर पार्ट। सेंट्रल पार्ट की बात करें तो सेंट्रल पार्ट्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके आउटर हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट मींस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग में वो लगातार रिवॉल्व कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। सो दीज थ्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, एंड थर्ड वन विच इज़ न्यूट्रॉन आर हैविंग नो चार्ज। सो अगर हम किसी भी एटम की बात करें, जब तक वो न्यूट्रल हालत के अंदर होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। मींस न्यूट्रल, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं इक्वल तादाद के अंदर होते हैं, तो इसलिए जब ये इक्वल तादाद के अंदर होते हैं तो ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब एटम न्यूट्रल हालत के अंदर होता है तो उसके ऊपर कोई भी किस्म का चार्ज नहीं होता। वाई न्यूट्रल एटम कैरी नो चार्ज? बिकॉज इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Here is the simple example of atom. The simplest atom is hydrogen. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम जो है वो कैरी करता है, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा अगर हम एक अदर एटम की बात करें जो कि है कॉपर, और कॉपर जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है जितने भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं या केबल्स होती हैं वो कॉपर की ही बनाई जाती हैं मोस्टली। तो कॉपर एटम की अगर हम बात करें तो कॉपर एटम के अंदर जो है 29 प्रोटॉन्स होते हैं और 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई गई है नीचे, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स होता है, ये मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कि जो
सेंट्रल पार्ट्स के बाहर जो नंबर ऑफ़ शेल्स दिए गए हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब किस तरीके से होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने को ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फ़र्स्ट शेल ऑलवेज कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट को दिखाया गया है, और जो इसके अंदर फोर्थ शेल है उसके अंदर जस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, क्योंकि ये आउटर, इसको हम इस इलेक्ट्रॉन को हम आउटर, क्योंकि ये जो शेल होता है सबसे बाहर वाला, इसको हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर इफ़ देयर इज़ ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स देन दैट एटम कैन ईज़िली लूज देयर 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से दैट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सबसे जो आखिर का शेल होता है उसके अंदर अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो एटम जो है मोस्टली आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है, और आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज़ कर देता है अगर उसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, जिसको जैसे ये अगर हम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से अगर हम देखें तो जैसे ही हम कॉपर की वायर को जो है स्विच ऑन करते हैं तो बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में कॉपर की वायर्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईज़िली एनर्जी गेन करते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो इसलिए उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं फ्राम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ कंडक्टर, इसी को हम बोलते हैं, इसी की मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो ये एक सिंपल एग्जांपल दिखाई गई थी कॉपर के एटम की। सो द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द कॉपर एटम इज़ ओनली लूजली अटैच्ड टू द एटम एंड इज़ कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल जो है, जो सबसे बाहर का शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन सिंगल एक मौजूद है, उसके ऊपर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और वो प्रोटॉन्स होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वीक होगी, जिसकी वजह से ये आसानी से बाय अप्लाइंग अ स्मॉल पोटेंशियल, बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एनर्जी, इट विल ईजिली रिमूव फ्राम इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हवाले से। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम जो है सेकंड जो हमारा सब टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे, और सेकंड जो सब टॉपिक होगा उसके अंदर जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी आउट करेंगे, इसके अलावा अदर टर्म्स रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। सो ये जो जितनी भी टर्म्स दी गई हैं सब टॉपिक 1.2 के अंदर, ये मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। मेरी नज़र में वो बंदा इलेक्ट्रिकल का बंदा हो ही नहीं सकता जिसको इन टर्म्स के बारे में नॉलेज ना हो। तो ये बुनियादी टर्म्स हैं जिसके मुतल्लिक हर एक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, चाहे वो एसोसिएट इंजीनियर है या बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन सब को जो ये टर्म्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इन टर्म्स को स्टडी आउट करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को सुने, और मेरा जो चैनल है DAE इलेक्ट्रिकल नॉलेज, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जो है मैं जो है मज़ीद आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं और आप इससे फ़ायदे लेते रहें। थैंक यू।